screenshot that paragraph that you have to read. Thank you, Rutuja Mataji. Anyone who can volunteer? Okay, Vaishnavi Mataji, thank you. Okay, Vaishnavi Mataji, can you please read the section that we are supposed to discuss today? This paragraph. Yes, Mataji. I think it is from George Harrison was the impetus that we are supposed to read, right? From there. Can you read it loud? Yes, Mataji. Please go ahead. Sorry, actually, I just hospital to watch our baby. Yeah, please go ahead. We couldn't change also. Yes. उसको थोड़ा इलाज कर सकते हैं या तो नहीं इलाज करेंगे तो आएगा नहीं। माता जी आपने शायद वो कर रखा है, म्यूट कर रखा है खुद को। वी आर नॉट एबल टू हियर यू। ओके, यस, ओके, सो मे बी आई विल रीड इट लाउड। माता जी, आर यू कंफर्टेबल रीडिंग इट और शैल आई रीड इट फॉर यू? Okay, I will read it loudly. Okay, so we are going to read from Chant and Be Happy book by Srila Prabhupada. George Harrison was the impetus for the Beatles' spiritual quest of the 60s, and up until his death in 2001, the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, continued to play a key role in his life. In this conversation with his long-time personal friend, contemporary Vedic Library Series editor Mukund Goswami, tapped at George's home in England on September 4, 1982, George reveals some of the memorable experiences he had chanting Hare Krishna and describes in detail his deep personal realizations about the chanting. He explains what factors led him to produce the Hare Krishna mantra record, My Sweet Lord, and LPs, All Things Must Pass, and Living in the Material World, all of which were influenced to a great extent by the Hare Krishna chanting and philosophy. He speaks lovingly and openly of his association with his Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of the Hare Krishna movement. George also speaks frankly about his personal philosophy regarding the Hare Krishna movement, music, yoga, reincarnation, karma, the soul, God, and Christianity. The conversation concludes with his fond remembrances of a visit to the birthplace of Lord Krishna in Vrindavan, India, home of the Hare Krishna mantra, and with George discussing some of his celebrity friends' involvement with the mantra, now heard and chanted around the world. Okay, so here we are talking of George Harrison. So are you aware of who is George Harrison? Or who was George Harrison rather? Okay, so during 60s he was a part of Beatles group. Yes, Wave group. So during 1960s he was a part of Beatles group. Beatles group का part था वो. और जो Beatles group था ना, it was so famous at that time. मतलब अभी तो हम किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते. अभी कोई है ऐसे बोलते हैं कि जब इनका बर्थडे था ना, यस रुतुजा माता, यस सर, ऐसा बोलते हैं कि जब इनका बर्थडे था ना, तो उस टाइम पे तो ये फोन तो होता नहीं थे, मोबाइल वाले 1960s की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे लेटर्स लिखते थे लोग. तो 7 ट्रक भर के सिर्फ लेटर्स गए थे इनके फैन के. कैन यू इमेजिन, ट्रक फुल ऑफ लेटर्स. ट्रक मतलब आप एक सूटकेस में सोच लो आप कितने लेटर्स आ जाते हैं, एक बॉक्स में सोच लो आप कितने लेटर्स आ जाते हैं. इसे ट्रक भर की लेटर्स उनके बर्थडे पे. सो इतना क्रेजी फॉलोइंग था इनका बीटल्स का. और इन बीटल्स में एक थे जॉर्ज हैरिसन. जॉर्ज हैरिसन यूज्ड टू प्ले गिटार. एनीवन ऑफ यू हैव हर्ड जॉर्ज हैरिसन का सुना है यूट्यूब पे? ये जो सुना है ऑल थिंग्स मस्ट पास, ओ माय स्वीट लॉर्ड, वेरी ब्यूटीफुल. एनीवन ऑफ यू हैव हर्ड इट? किसी ने सुना है? ओके, मे बी यू कैन ट्राई माय स्वीट लॉर्ड. So beautiful that song, My Sweet Lord. He's playing guitar and he's singing the song, My Sweet Lord.
My Sweet Lord is talking about Lord Krishna. तो ये जॉर्ज हैरिसन जो थे, he was the one who gave a lot of donation to शिला प्रभुपाद. शिला प्रभुपाद ने बहुत सारा डोनेशन दिया था और कृष्णा बुक जो है इनकी वजह से पब्लिश हुई थी. So George Harrison did a lot of service to शिला प्रभुपाद. And वो जब शिला प्रभुपाद के पास में आए थे, उन्होंने पूछा था हाउ कैन आई सर्व यू प्रभुपाद. प्रभुपाद ने बोला तुम कंटिन्यू यही करो, म्यूजिक करते हो ना, कंटिन्यू प्ले म्यूजिक. और वो अपने म्यूजिक से, और ये जो एल्बम्स थे ना, ये माय स्वीट लॉर्ड और ये वाला, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग एल्बम्स थे. यू नो दे वर लाइक नंबर 1 फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यूरोप में मतलब क्या बोलेंगे, एकदम धूम मची हुई थी इनकी. इतना जबरदस्त चलता था इनका रिकॉर्ड उस टाइम पे, बहुत. He was like way more famous than Michael Jackson. They were so famous. They were so famous at that time. अभी तो कोई ऐसा बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार नहीं है जितना फेमस हो. People were crazy. उनके कंसर्ट में लोग पागल हो जाते थे. They were so famous and they were so rich, so rich. So this George Harrison, but he was a pious person in that way that you know he met शिला प्रभुपाद. शिला प्रभुपाद से मिलने के बाद उन्होंने पूछा कि लाइफ क्या होती है, एंड देन उनका पूरा डिस्कशन हुआ और शिला प्रभुपाद ने उनको फिलोसॉफी बताई और फिर उनको बताया कि आप है ना इस तरीके से भगवान के नाम का प्रचार कर सकते हैं. आप उनके नाम का एल्बम निकालिए, पूरे सब जगह पे भगवान का नाम पहुंचेगा आपके थ्रू. प्लीज कंटिन्यू, यू डोंट नीड टू रिनाउंस एनीथिंग. आपको कुछ संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं है. आप इसी प्रोफेशन में कंटिन्यू करिए, है ना. और इस प्रोफेशन के थ्रू, यस वर्षा माता जी, एंड इस प्रोफेशन के थ्रू आप भगवान के नाम को सब जगह पे प्रसार कर सकते हैं. सो he started recording the albums. और ये albums इतनी फेमस हुई, everyone started becoming aware of हरे कृष्णा मूवमेंट. उस टाइम हरे कृष्णा मूवमेंट फिर सबको पता चलने लगा, एंड ये लोगों को पता चला हरे कृष्णा मूवमेंट होता है, हरे कृष्णा क्या होता है. एंड पीपल स्टार्टेड टेकिंग हरे कृष्णा. इनके खुद के एक्सपीरियंस थे एक्चुअली कि चैंटिंग हरे कृष्णा से क्या होता है. बाय द वे आई वांट टू आस्क यू पीपल, आप लोग भी चैंटिंग कर रहे हैं राइट? हमने फिर चैंटिंग, यस, ऋतुजा माता जी, थैंक यू, तेजल माता जी, वृंदा माता जी, नंजना माता जी, सांकेत प्रभु, तेज मनुष्य, यस, एवरी वन ऑफ यू आर चैंटिंग इट सेम्स. ओके, सो एक आध कोई अपना एक्सपीरियंस ये कुछ बता सकते हैं, योर रियलाइजेशन. इट मे नॉट बी रियलाइजेशन फ्रॉम हार्ट, एटलीस्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन चैंटिंग को लेके. It increases the focus by Tejal Kumar. Okay, yes, it increases focus. I agree. फोकस बढ़ता है क्योंकि आप कंटिन्यूसली फोकस करने की कोशिश करते हैं मंत्रा पे, तो इन जनरल आपका फोकस बढ़ जाता है लाइफ में. ओके, वंडरफुल. व्हाट एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, मन शांत होता है और मतलब बहुत अच्छा लगता है जब भी चैंट करते हैं, तो एक कनेक्शन फील होता है कृष्णा से. वेरी नाइस माता जी, वर्षा माता जी, कि मन शांत होता है. एंड तेजस प्रभु स्टडी इट इज डिक्रीज्ड विकार लाइक एंगर. ओके, और हमारे जो अनर्थास हैं, है ना, 6 प्रकार के जो अनर्थ है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, ये सब जो होते हैं हमारे अनर्थास, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरी, ये 6 प्रकार के जो अनर्थास ये कम होते जाते हैं. क्यों कम हो जाते हैं? क्यों मन शांत हो जाता है? वर्षा माता जी होती है क्यों हमारा मन शांत होता है? ठीक है प्रभु जी, मुझे इतना तो ये नहीं है, बट मतलब क्या बोलूं. ओके, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस ना, होता क्या है कि जब हम ये हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं, तो ये हरे कृष्णा जो है इट इज नॉट डिफरेंट देन लॉर्ड. भगवान से अलग नहीं है, और भगवान परम पवित्र है ना. तो भगवान अगर परम पवित्र है और हम भगवान के संपर्क में आते हैं हरि नाम के थ्रू, तो हमारा मन भी पवित्र होने लगता है. और जितना मन पवित्र होता है उतना शांत होता जाता है. जितना उसमें गंदगी होती है उतनी उसमें एंग्जाइटी होती है, उतनी उसमें उथल पुथल होती है. जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या हिंदी में? आध्यात्मिक जगत को क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक, हाँ, आध्यात्मिक जगत को क्या बोलते हैं हम? वैकुंठ. वेरी नाइस तेजस. वैकुंठ. सो वैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है. कुंठा मतलब जहाँ कोई एंजाइटी नहीं, कोई टेंशन नहीं है. आज का लेक्चर अपन सिर्फ होली नेम के बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चैंट एंड बी
हैप्पी हैप्पी डिवोटीज बोलते हैं प्रभु जी क्या चैन बी हैप्पी, चैन कर करके और मन परेशान हो जाता है कि क्या आप ऐसे बता रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे बोलते हैं प्रभु जी टेंशन देता है आपको, तो 4 माला पूरी करनी है, बी हैप्पी तो छोड़ दो, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है, टेंशन और बढ़ जाती है, माला कब पूरी होगी। नहीं वैसा नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, यू नो, यस दिस ट्रू एंड वैष्णव माता एवरीवन। चैंटिंग इज आवर फॉर्च्यून एक्चुअली, क्योंकि भगवान मतलब सोचो आपको कोई बोले कि ना कृष्ण आपसे मिलने आ रहे हैं, राधा रानी आपसे मिलने आ रही है, आप में से कितने लोग एक्साइटेड हो जाओगे? यस सुत्रा माता, यस everyone of you, right? Sanket Prabhu and Manusya Mataji, everyone else, yes. We all will be very excited. Wow, super, yes. We can't imagine how कैसा लगेगा, you know, कृष्णा को मिलना, राधा रानी को मिलना, wow, super, super, super. But then आचार्य बार-बार गा के बोल रहे हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स गा के बोल रहे हैं कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, गुण, लीला, धाम, किसी में कोई फर्क नहीं है। भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान जितने पवित्र हैं वही पवित्रता आपके शरीर में आने लगती है। तो जितने पवित्रता आती है उतना हमारा मन शांत होता है। हमको इस बात पर विश्वास रखना चाहिए। जितना हमारा मन पवित्र होता जाएगा उतना हमको इस बात का विश्वास भी बढ़ेगा कि भगवान का नाम जो है वो भगवान से अलग नहीं है। आपको एक्चुअली प्रेम होने लगेगा कि आई वांट टू चैट मोर, गीताम दैट इज द सॉन्ग, राइट? कि मैं गाता रहूं, मैं आई हैव मिलियंस ऑफ ईयर्स, मेरे इतने कानों में इतना सुन सकूं। अभी तो ऐसा लगता है 2 ही बोलते हैं, उतने में प्रभु जी नींद आ जाती है हमको जपा करते हुए नींद आ जाती है, क्योंकि हमारा मन बहुत बदमाश है। ये जरूर तो हमारा ही तो अभी हमारा मन बदमाश है ना, बदमाश मन है, हम मन नहीं है, ये हमारा मन है जो बदमाश है। मन क्यों बदमाश है? अभी हमारा मन क्यों बदमाश है? अच्छा, मन होता क्या है? यस, मन इज पॉल्यूटेड, भोगों में लगा है, राइट? वैष्णव माता जी तीजिल भोगों में लगा, दैट्स ट्रू। बट अभी हमारा मन बदमाश क्यों इतना, क्यों उसको भगवान के नाम में आनंद नहीं आता है? क्यों ऐसा बोलता है कि ये बोरिंग है? हम भगवान से दूर हैं। ओके वृंदा माता जी, यू आर राइट, भगवान से दूर है एंड इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय इंटेलिजेंस, दैट इज आल्सो राइट। दोनों बातें सही है। अभी इसलिए बदमाश है क्योंकि मन क्या है? मन इज जस्ट ए स्टोर हाउस, है ना? मन क्या है? हमारा स्टोर हाउस है हमारे संस्कारों का, मन या चित्त जो भी बोलना है। जैसे हमने जितने भी इतने जन्मों से जो कुछ भी हमने सुना है, जो कुछ भी हमने देखा है, या जो कुछ भी हमने बोला है ना, जो कुछ भी हमने स्पर्श किया है, जो कुछ भी हमने 5 इंद्रियों के द्वारा हमने ग्रहण किया है। 10 इंद्रिया होती है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिया। तो जो कुछ भी हमने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया है ना, वो मन में चले जाता है। अब जैसे कोई बोलता है कि प्रभु जी है ना, मैंने, अच्छा ठीक है, मैं पूछना तो नहीं चाहिए पर पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने कभी हॉरर मूवी देखा है? कैसे, कितना एकदम स्पॉन्टेनियस आंसर आया देखा है, ओके। तो ओके तो हॉरर मूवी देखने के बाद में अगर कोई आपको बोले कि ना आपको आज रात को अकेले सोना है ये घर में, तो क्या फीलिंग आती है? हाँ, मजा आता है ना एकदम, डर। यस रुतुजा माता जी, यस राइट, वर्षा माता जी, वृंदावन। डर लगता है, राइट? ऐसा लगता है और आहट पे लगता है कि कोई है ना? कोई आपको साया भी हिलता हुआ दिखेगा तो आपको लगेगा भूत है, लगेगा या नहीं? और सोचो गलती से मान लो कोई बर्तन गिर जाए आपके घर में और आप अकेले सो रहे हो, मूवी देख के, सी हॉरर मूवी एकदम, क्या लगेगा आपको? भगवान श्री कृष्ण आ गए घर पे, मस्ती कर रहे हैं बाल रूप में? बिल्कुल नहीं लगेगा, ये लगेगा कोई भूत है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्या हुआ है? क्योंकि हमारे माइंड में वही चल रहा है, मूवी का जो सीन वगैरह था वही। यस, वेरी राइट वृंदा माता जी, वेरी नाइट वैष्णवी माता जी। इंप्रेशंस, हमने क्या किया है? हमारे मन में गलत संस्कार डाल दिए हैं, राइट तिजिल? तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है वो डर, है ना? आप एक बात याद रख लीजिए, हमारे 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो अब जो कुछ भी देखते, बोलते, सुनते हैं ना, वो हर चीज वो कॉन्शियस माइंड में एज इट इज डिपॉजिट हो जाती है। कॉन्शियस माइंड में नहीं होती। कॉन्शियस माइंड का फिल्टर करना जानते हो, है ना? जैसे आपके मन में कुछ थॉट आ रहा है तो कॉन्शियस माइंड से हटा दोगे उसको, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में है वो, राइट? तो हम कुछ भी देखते, बोलते, सुनते हैं ना, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाता है हमेशा के लिए, और जब अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बाहर आ जाता है। इसको संस्कार बोलते हैं, हमारे संस्कार। तो इतने जन्मों से हमने बहुत सारे संस्कार भर रखे हैं मन में,
और ये ज्यादातर संस्कार हैं वो पाप जनित हैं, मतलब गलत है, जो भगवान ने जो हमको बोला उसके विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मन जो होता है ना वो पाप में ज्यादा जाता है और अच्छी चीजों में कम जाता है, पुण्य की तरफ कम जाता है, भगवान की तरफ कम जाता है, क्योंकि हमने उसको गलत चीजों से भरा हुआ है। और जितना हम गलत चीजों से भरते जाते हैं उसको मन को, उतना उसको भगवान में मन नहीं लगता है। क्यों? अगर हम पाप करते तो हमको भगवान में मन क्यों नहीं लगता है? क्यों? भगवान परम पवित्र है। भगवान क्या है? परम पवित्र। तो हम परम पवित्र के प्रति तभी अट्रैक्शन फील करेंगे जब हम खुद पवित्र होंगे, है ना? तो हम थोड़ा बहुत पवित्रता तो प्रयत्न तो हमको भी करना चाहिए, और बाकी भगवान का नाम करा देगा पवित्र, लेकिन हमको भी थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए। तो जितना हम पवित्र होते जाएंगे, जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा, जितना हमारा मन शुद्ध होगा, जितनी हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, उतना ज्यादा हमको भगवान के प्रति अपना प्रेम बढ़ता हुआ महसूस होगा। तो अभी हमको इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे मन में पाप है, किसी में कम किसी में ज्यादा है। तो जितना कम पाप होता है, जितना हमारा मन शुद्ध होता है, उतना हमको भगवान के प्रति प्रेम महसूस होता है ना? तो इसके लिए हमको क्या करना है? हरे कृष्ण जप करना है, और जितना जप हो सके उतना जप करना है। ये नहीं कि 16 माला या 4 माला 8 माला, ऐसा नहीं, जितना जप कर सके। माला पे ठीक है आप करिए, लेकिन बाकी टाइम भी करिए। ये याद रखिए कि ये हमारा फॉर्च्यून है, करना पड़ रहा है। नहीं जैसे बहुत बड़ी डिवोटीज बोलते हैं, प्रभु जी क्या ना, अभी मेरी 8 माला बाकी है, करनी पड़ेगी अभी 8 माला जाके। करनी पड़ेगी क्या होता है? फॉर्च्यून है बाबा तुम्हारा, देवता तरस रहे उसको भक्ति करने को, आप मिल रहा है बाबा, मिल रहे हैं। प्लीज सर अंडरस्टैंड, कृष्ण और राधा रानी आपसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कृष्ण और राधा रानी दे आर बिकमिंग रेस्टलेस, ईगर टू कॉल यू बैक, और वो अरेंज करवा रहे हैं ताकि आप जल्दी जल्दी उनके पास पहुंचे। तो हमारा सौभाग्य, हमारा फॉर्च्यून है कि हमको चैंट करने मिल रहा है, हमको डिवोटीज का एसोसिएशन मिल रहा है, हमको भगवान के बारे में सुनने मिल रहा है, हमको भगवान की भक्ति के बारे में समझने को मिल रहा है। वो कृष्ण अरेंज कर रहे हैं, अपने आप नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी डिवोटी आपको आके बुला के जा रहा है और आप सेशन अटेंड कर रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये भगवान अरेंज कर रहे हैं ताकि आप जल्दी जल्दी उनके पास जाएं। भगवान का प्रेम है, ही इज गेटिंग रेस्टलेस, ही वांट्स यू टू बैक इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान आपको आध्यात्मिक जगत में वापस देखना चाहते हैं, उनके साथ आपसे बातें करना चाहते हैं, और ये होगा चैंटिंग के थ्रू, डिवोटीज के एसोसिएशन के थ्रू। और जब हम गलत काम नहीं करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, है ना? क्या है 4 नियम? चार नियम कौन से हैं? मांसाहार नहीं करना, दारू नहीं पीना, पराई स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना, और जुआ नहीं खेलना। वेरी नाइस विवेक। तो ये 4 नियमों का जब हम पालन करते हैं तो हमारा मन और शुद्ध होता है, और जितना मन शुद्ध होता है उतना उसको भक्ति में आनंद आता है। भक्ति में तो आनंद है, लेकिन हमारा मन पापी होता है तो उसको आनंद नहीं आता, है ना? तो जितना हम शुद्ध होते जाते हैं उतना भक्ति का आनंद बढ़ता जाता है। तो हमको कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा जप करें, हम गलत काम नहीं करें, और जब करते हो कभी ये ना सोचे कि करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा नहीं। हमको ये सोचना चाहिए मेरा सौभाग्य है, ये भगवान की कृपा है, भगवान का प्रेम है जो मुझे भगवान का नाम जप करने दे रहे हैं। भगवान अरेंज कर रहे हैं कि मैं उनके नाम की महिमा सुन सकूं, भगवान अरेंज कर रहे हैं कि मैं उनके बारे में सुन सकूं। कितना प्रेम करते भगवान हमको। और ये डॉक्टर ऋषि सिर्फ टेक नहीं रहे, ऐसा स्क्रिप्चर्स में लिखा है, ऐसा हमारा आचार्य बोल के गए, है ना? तो ये हमारा सौभाग्य है, वी आर सो फॉर्च्यूनेट। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। Out of thousands of men, one person may try to endeavor to know Krishna, and out of those thousands, कोई एक succeed होगा। तो हमको we are like, maybe you can use the word, we are like chosen ones. We are like chosen ones from Krishna. इतने बिलियंस ऑफ लोग हैं इस प्लेनेट में, बिलियंस। कितने लोग उसमें से भक्ति कर रहे हैं? वो भी कृष्णा की भक्ति, टॉप मोस्ट भक्ति कौन कर रहा है? वो भी प्रेम पूर्वक भक्ति की जाए, कितने ही लोग कर पा रहे हैं। सो यू आर दोस फॉर्चुनेट पीपल। आप वो हैं गिने चुने लोग इस पूरे प्लेनेट अर्थ पे, और ये प्लेनेट अर्थ ही है जहाँ भक्ति होती है। ऊपर नीचे कहीं भक्ति हो नहीं पाती है ढंग से, बात ऐसी बात नहीं है। स्वर्ग में भी, नीचे भी 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, और बहुत कम होते हैं, मेजोरिटी अर्थ में ही है। और अर्थ में भी आप देख लीजिए कितने लोग कर रहे हैं, तो आप बहुत ही फॉर्चुनेट है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, पूरे ब्रह्मांड में कोई तो ऐसे भाग्यवान जीव है, उसमें आप हैं। यू आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट, एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट, यू आर एबल टू चैंट, भगवान का नाम जप कर रहे हैं।
आप उस जाप को कंटिन्यू रखिए, चैंटिंग करते रहिए और विश्वास रखिए कि भगवान सब कुछ अरेंज कर रहे हैं आपके लिए, आपको उनके पास बुलाने के लिए, बिकॉज ही लव्स यू सो मच। कृष्ण लव्स यू सो मच। आपको इतना प्यार करते हैं, इसके लिए आप इतनी भक्ति कर पा रहे हैं। ये तो माया इतनी प्रचंड है। कृष्णा व्हाट इज इन भगवद गीता, हाउ इज इट माया? भगवान की माया किसी क्या बोलते हैं भगवान भगवद गीता में माया को? मम माया दुरत्या। क्या बोलते भगवान? मम माया दुरत्या। भगवान बोलते मेरी जो माया है ना वो बहुत डिफिकल्ट है उसको ओवरकम करना। दुरत्या, यस वैष्णव माता। दुरत्या मीन्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ओवरकम। दुरत्य नहीं, एक्चुअली इम्पॉसिबल है। कृष्ण दुरत्य बोले, दुरत्य नहीं, इम्पॉसिबल है। हम माया को पार नहीं पा सकते। तो ये जो भी आप इस माया के गढ़ में रहते हुए ये जो भगवान का नाम सुन पा रहे हो, भगवान के बारे में सुन पा रहे हो, ये भगवान की कृपा से हो रहा है, क्योंकि भगवान आपको प्रेम करते हैं, भगवान आपको उनके पास देखना चाहते हैं। हम भी उतने ही ईगर हैं, हमारा हक है भगवान के धाम में। भगवान के बच्चे हैं, भगवान का मतलब क्या बोलने का, एज अ फादर एंड मदर हमारा हक है कि हम राधा कृष्ण की सेवा करें, उनके धाम में रहें, उनके साथ रहें। हमारा घर है वो। हम में से कितने लोग हैं जो जाना चाहते हैं, हम हमारे घर जाना चाहते हैं? यस तुझे माता जी, yes Sangeet Tejas Prabhu, yes, so we all want to go to our home and Krishna is calling us, he is repeatedly calling us, he is calling us through scriptures। उनके शास्त्र के द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा भगवान हमको बुला रहे हैं, आओ आओ मेरे पास आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर यू। और उसका सबसे बेस्ट तरीका है हमको भगवान का नाम जप करना है, जितना जप हो सके उतना करना है, भक्तों के संग में रहना है, गलत काम नहीं करना है। गलत काम करने से क्या होता है, हमारी भक्ति खत्म नहीं होती है, भक्ति ढक जाती है। भक्ति तो आपने जितनी भी कर ली वो इटर्निटी के लिए स्टोर हो जाती है, इटर्निटी के लिए, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। मान लो आपने आज 2 माला जप किया, वो स्टोर हो गया। आपने आज आधा घंटा लेक्चर सुना भगवान के बारे में, आधा घंटा प्रवचन सुना ना, वो भक्ति में ऐड हो गया है। उसको आप कितना भी पाप कर लो वो भक्ति में से माइनस नहीं होगा। जस्ट इमेजिन हाउ मर्सीफुल कृष्णा इज, हाउ लविंग ही इज। क्या आप कितना भी कृष्णा को दूध काट दो, धक्का दे दो, कृष्णा के बारे में गलत बोल दो, उनके बताए हुए सारे निर्देशों करो, जस्ट सारे पाप करो, तो भी भगवान भूलेंगे नहीं कि आपने